Hello everybody. In the last class, we have completed up to section 13 of the Hindu Marriage Act. That is up to the concept of the divorce we have already completed. Today we are going to have a small recap about the section 13 and then we are going to proceed further. Okay. So when we are talking about the concept of the divorce, we know it is about the separation of the marriage, like when a husband and wife they get separated from each other. That is what we call the divorce. So there are certain grounds for the divorce we have already discussed in the last class, and we know under section 13 of the Hindu Marriage Act the concept of the divorce has been described. Okay. So when we are talking about the divorce between the parties, okay, so how does it has been indicated, what are the conditions for this? Though we have already discussed, let me give you a small recap about all those past things. So, under the clause 1, we have discussed certain grounds which can be the reason of the divorce between the parties. The first point, the voluntary sexual intercourse of his spouse except another spouse with another man or woman. That is what we call the extramarital affairs. So when you are having a partner, you are married, but still you are having the physical or sexual intercourse except your parents, you except your spouse. I'm sorry, except your spouse. I mean, if you are a man, then your woman, or if you are a woman, there is your man. Okay, except your spouse, if you are having the sexual or physical intercourse with any other woman or man, that is called the that can be the reason of your divorce. The first thing. Second thing, the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty. Okay, so that can be also the reason of the judicial separation or divorce. So when we have talked about the concept of the judicial separation, we already knew that when there is the petition of divorce in the court of law, then before granting the divorce, the court first grants the judicial separation. That means court asks both of the parties, the husband and wife, to live separately from each other. कोर्ट ये बात बोलता है कि आप एक काम करो, कुछ दिन पहले आप एक दूसरे से अलग रहो। अलग रहने के बाद अगर आप लोगों को ये रियलाइज होता है कि नहीं, आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, देन यू गाइज स्टे टुगेदर। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, यू गाइज शुड गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देन गेट सेपरेटेड। हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो हियर we can talk about that when the petitioner has been treated with the cruelty. फॉर एग्जाम्पल आपका पति है, आपका पत्नी है, कोई भी आपको अगर क्रुएल्टी के साथ डील किया है, क्रुएल्टी के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया है, and we have already understood, we have already discussed, the cruelty is not only talks about the physical cruelty. क्रुएल्टी ऐसा नहीं कि बॉडी में दो चोट लगा दिया या फिर कोई नुकसान पहुंचा दिया, थोड़ा हाथ उठा दिया तो क्रुएल्टी हो गया, नहीं। Cruelty is also of various types. That is basically of two types. One is called the physical cruelty and second one is called the mental cruelty. Emotionally और mentally अगर किसी ने आपको hurt करता है, then that is also the ground for the cruelty and that can be also the reason of the divorce or the judicial separation itself. Okay. The third condition, has deserted the petitioner not less than 2 years immediately preceding the year of the petition. That means जिस साल में पिटिशन दिया गया है उसी से 2 साल को आप पीछे चले जाओ। 2 साल से पति पत्नी साथ में नहीं रहे हैं। ओके, दैट मीन्स डिजर्टेड द पिटिशनर, डिजर्टेड द स्पाउस, डिजर्टेड द पार्टनर, उसी को किसी पार्टनर को खुद से दूर रखना, जानबूझ के उसके साथ ना रहना, उसको अपने से दूर रखना, दैट इज कॉल्ड द डिजर्टेशन।
And if the act of keeping away your spouse or keeping away your partner is more than 1 year, more than 2 years, then that kind of the activity can directly lead to the judicial separation or divorce per se. And the most important part, ceased to be a Hindu by the conversion into another religion, which is very clear in nature, जहाँ पे ये बोला जाता है when the person has converted into another religion. In that case also, it is the complete independence of the wife that she wants to stay with the husband or not. Okay, then the last one, the unsound mind and suffering from mental disorder. Okay, if the petitioner is of unsound mind, or if the respondent is of unsound mind, and uh, there is a kind of nature of the mental disturbances, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे के साथ नहीं रह रहा है, in that condition also the court can grant the judicial separation or divorce. So under section 13 क्लॉज 1 के अंडर हमने कुछ कुछ कंडीशंस पढ़ा. क्या क्या कंडीशंस पढ़ा? पहला कंडीशन ये पढ़ा जहां पे द पार्टनर इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक्सेप्ट हिज और हर स्पाउस, अपना पति या पत्नी का होते हुए दूसरा किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करना, सेक्सुअल रिलेशन रखना. दूसरा कंडीशन है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट करना, उसी को मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना, हरास करना, ये सारी चीजें. ओके, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, 2 साल से ज्यादा हो गया एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं, शादी के बाद अपने पार्टनर को अकेले छोड़ देना. शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ 2 साल से ज्यादा हो गया बट आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे हो, दैट टू नोइंगली, जानबूझ के. नेक्स्ट कंडीशन, सीज टू बी ए हिंदू, अपना रिलीजन बदल देना. एंड लास्टली, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिजीज के वजह से खुद सफर होने के साथ साथ अपने पार्टनर को भी सफर करना. एंड दैट टू दैट मेंटल डिसऑर्डर इज नॉट क्यूरेबल इन नेचर, उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, राइट? So in all that circumstances, we can say that this kind of upon these conditions, if any kind of the spouse, that might be husband or that might be wife, is asking for the divorce or judicial separation, the court can easily grant the same. Okay. The second condition under the same clause 1, we have already discussed, like that is the mental disorder, psychopathic disorder, we have already discussed in the last class. The fifth point we have discussed, the person has been suffering from the venereal disease in the communicating form, where the partner is unable to give a child to another partner. That means when the person or the partner is called infertile in nature. Okay. The next condition, has renounced the world by entering to the religious order. That means that person has totally renounced the world. Okay. And the last point is, has not been heard of being alive since last 7 years or more. That means last 7 साल से वो गायब है. कहाँ गया है, कैसे है, किधर गया है, उसका कुछ आता पता नहीं है. एंड उसको जानने पहचान वाले जितने भी लोग हैं, सबसे बातचीत किया जा चुका है. एंड दैट पर्सन इज टोटली disappeared, right? So in this kind of the conditions, when we are talking about the divorce or the judicial separation, that can be granted easily. Okay. तो पहले क्लॉज 1 के अंदर हमने सारे कंडीशंस डिस्कस किए. क्रुएल्टी हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया,
मेंटल डिसऑर्डर हो गया, रिलीजन चेंज करना हो गया, या फिर जो भी कंडीशन था फॉर द ग्राउंड्स ऑफ द डिवोर्स और द जुडिशियल सेपरेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, and coming to the next part, what we saw, like if the person is suffering from any kind of the venereal disorder or has renounced the world by entering into the religious order, जैसे कि दुनिया छोड़ दिए और that person has become a saint, जैसे कि आपने आपको बोलते हैं ना कि the person has taken the sannyas, that means दुनिया को छोड़ के that person is specifically related for the spiritual activity that is called santha, and that person has renounced the world, दुनिया छोड़ दिया, दुनिया का हर तरह का बंधन को छोड़ दिया है. In that condition also the wife can ask for the ground of the divorce, कि चलो अगर इस इंसान ने शादी तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, सन्यासी बन गया, तो मैं उसके बीवी बन के क्या करूंगी? कुछ भी नहीं. तभी मेरे को तलाक चाहिए उसी से. एंड आफ्टर गेटिंग डिवोर्स आई माइट रीमैरी एंड स्टार्ट माई न्यू लाइफ, राइट. अगर उसको सन्यासी बनना है तो उनके लिए मैं कितना इंतजार करूं कि वो वापस आएंगे, क्योंकि सन्यास बनने के बाद कोई तो वापस आता नहीं है, राइट. सो अपॉन दैट कंडीशन द वाइफ कैन आस्क फॉर द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स. एंड द लास्ट वन बट द वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर the husband has not been heard for more than 7 years, 7 साल से ज्यादा हो गया, बट किसी भी तरह का आता पता नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किधर है, कोई भी बता नहीं पा रहा है. इन दैट कंडीशन ऑल्सो द डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड. ओके, so that was about the clause 1. And under the 1A we have also discussed about some points जहाँ पे हमने डिस्कस किया था after the judicial separation or after the order of the divorce, the husband and wife are not living together. Okay, पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं, so in that condition also the divorce can be granted. So the next point, अगर शादी के टाइम एनी ऑफ द पार्टनर इज ऑलरेडी अलाइव एंड दिस इज द कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय द अनदर पार्टनर, जहाँ पे दूसरे पार्टनर को ये बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि शादी के टाइम दैट पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग ए हस्बैंड और वाइफ, इन दैट केस ऑल्सो दैट काइंड ऑफ मैरिज इज टोटली void in nature. Okay, then the very important point, जहाँ पे husband under the clause 2, it has been explained that when the husband is being accused of the rape, sodomy or bestiality. rape आपको पता है, bestiality मतलब having sexual intercourse with the animal, sodomy means to seducing someone. सो अगर पति इतना सारा घिनौना हरकत कर रहा है, इफ द हस्बैंड इज प्रूव्ड गिल्टी अगेंस्ट दिस heinous activities of the rape, murder, sodomy or bestiality, right? Or the next point, if जो भी पति या पत्नी है, before attending the majority is the person has got married, and after getting the majority is the person wants the divorce. जैसे कि आई एम ए गर्ल, मान लो लड़कियों का शादी करने का उम्र 18 साल तक होता है, पर जब मैं 14 साल की थी तब मेरा शादी हो गई थी. अभी मुझे 18 साल के हैं, अभी मुझे समझ है कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वांट टू ब्रेक द मैरिज एट दिस कंडीशन, राइट. मेरे को अपना फ्यूचर करना है एंड दैट इज व्हाई आई वांट द डिवोर्स, बिकॉज 14 साल की उम्र में मेरा शादी हुआ था एंड अभी मेरे को 18 साल हो गया है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज. एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो द कोर्ट अलाउज फॉर द डाइवोर्स बिटवीन द पार्टीज. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, जब तक ये डिवोर्स का पिटिशन या डिवोर्स का प्रोसीडिंग चलता रहेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन ऑफ द 125 ऑफ सीआरपीसी, एंड दैट इज द बीएनएसएस, अभी जो कन्वर्ट हुआ है,
So under that condition, when there is the ground of the under section 125, when there is the ground of the adoption and maintenance charges, it has been believed that if the party, if there are the two parties like the husband and wife and they are having a child itself, so जब तक proceeding चलता रहे, even after the completion of the proceeding, the husband is bound to pay compensation to the wife. Husband is bound to compensate his wife financially. Clear? Then section 13A, it speaks about the alternative relief for the divorce proceeding. So सेक्शन 13 के अंदर हमने जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, इसी का तुम्हें समझ में आया? पॉइंट हमने डिस्कस किया तुम्हें समझ में आया? सॉरी, आई हैव गॉट ए कॉल एक्चुअली. ओके, so we are discussing about section 13. Okay, so coming to the next part. Okay, so next coming to the part. Okay, so next coming to the part of section 13A, it talks about the alternative. It talks about the alternative relief of the divorce proceeding. Okay, so you can ask me like, ma'am, what can be the alternative relief of the divorce proceeding? Okay, so when so alternative of the divorce proceeding, that is always only one way, that is by the court, that is the judicial separation. तो पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी कोर्ट के पास किसी भी तरह का डाइवोर्स का प्रोसीडिंग, डाइवोर्स का केस जाता है, तो कभी भी कोर्ट ये बात नहीं चाहता है कि पति पत्नी दोनों अलग हो जाए. सो कोर्ट का हमेशा ये कंसर्न रहता है कि दोनों साथ में रहे. हो सकता है अगर म्यूचुअल काउंसलिंग के थ्रू या फिर म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे पार्टी को साथ में रहने के लिए मना जा सकता है, देन दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट कि हाँ ठीक है, हम बात करेंगे दोनों पार्टी से, अगर हो सकता है अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, देन दैट इज ए गुड थिंग. ओके, so in that case, when we are talking about the alternative relief of the divorce proceeding, and that talks about the clause 2, 6 and 7 of section 13. Clause 2 में क्या बोला? There is the when there is the restitution of the conjugal rights and the parties even after the passing of the decree of the restitution of the conjugal rights, the parties are not staying together. जैसे कि मैंने बोला था कि जुडिशियल सेपरेशन पास हो गया या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट का ऑर्डर पास हो गया, जहाँ पे कोर्ट ने ये बात बोला हस्बैंड एंड वाइफ को कि आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ साथ में आके रुको. तो even after the order of the court, the parties are not living together. पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं इवन आफ्टर द ग्रांटिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. सो इन दैट केस देयर मस्ट बी द अप्रूवल ऑफ द डिवोर्स. ओके, ये गया 2. एंड द नेक्स्ट इज द 13 का क्लॉज 1 का VI एंड VII, जहाँ पे हमने ये पढ़ा रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू द रिलीजियस ऑर्डर. दैट मीन्स दुनिया से मोह माया छोड़ के संन्यास ले लेना. Religious order means बाबा बन जाना, सन्यासी बन जाना. And the next point, the most important point, has not been heard from last 7 years. That the party has been alive or not. 7 साल से इंसान जिंदा है कि नहीं, उसका कोई अंदाजा नहीं है. उसका कितना भी पता लगाने का कोशिश कर लिया, बट इंसान का कोई भी प्रॉपर पहचान नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं. 7 साल से उसका किसी भी तरह का आता पता नहीं मिल रहा है. सो इन ऑल दीज कंडीशंस, जहाँ पे पहले बोला क्या, द पर्सन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का ऑर्डर के बाद भी, कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं. पति दुनिया छोड़ के सन्यासी बन गया है या फिर 7 साल से वो गायब है, वो निखोज है. उसका जितना भी पता कर लो वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसका कोई भी आता पता नहीं मिल रहा है. एंड अपन दीज कंडीशंस
there can be the alternative relief of the divorce proceeding. जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल करता है, तभी डिवोर्स देने के अलावा कोर्ट क्या करता है? कोर्ट पासेस द जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट बोलता है कि आप एक काम करो, एक दूसरे से 6 महीना हो जाए या फिर 1 साल हो जाए, अलग अलग रहो। एंड अगर आफ्टर लिविंग टुगेदर मोर देन 6 मंथ, 6 महीना अलग रहने के बाद भी अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों को सही से अलग हो जाना चाहिए, देन आई एम गोइंग टू ग्रांट यू द डिवोर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिवोर्स ग्रांट कर ही दूंगी। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द ऑल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग। Section 13B speaks about the divorce by the mutual consent. Okay. So 13A speaks about the alternative proceeding against the divorce proceeding, and 13B speaks about the divorce by the mutual consent. Okay. So when we're talking about the divorce by the mutual consent, that means the divorce by mutually by both the parties. That means both the parties, the husband and wife, they are mutually agreeing for the ground of the divorce. उन दोनों ने एक साथ एग्री हो रहे हैं पर सर्टन ग्राउंड्स कि हाँ, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, अब हम दोनों को अलग होना है। एंड that is also another ground of the divorce, and that is the most easiest way of divorce माना जाता है, जहाँ पे पति पत्नी दोनों अपने मर्जी से अलग होने का फैसला लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे 13B का जो क्लॉज 1 है, तो क्या बोलता है ये? दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर, एंड दे आर म्यूचुअली एग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। दैट मीन्स जब जिस डेट पे उन दोनों ने वो कंप्लेन लेके कोर्ट में आते हैं, या फिर द डेट अपॉन व्हिच दे आर फाइलिंग द डिवोर्स, उसी का ना सीधा 1 साल पहले को चले जाइए। 1 साल से, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज द 22nd of the July. ओके, मान लीजिए there are the parties who has brought a case to the court of law, जहाँ पे उन दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल की है। ओके, तो 22nd जुलाई 2024 में अगर डिवोर्स पिटिशन फाइल हुआ है, तो उसी का अगर आप 1 साल पहले को चले जाएंगे, दैट मीन्स 22nd जुलाई 2023 से 22nd जुलाई 2024 तक ये देखा जाएगा क्या ये दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ रहे हैं इन बिटवीन दिस 1 year? नहीं। अगर पिटिशन जिस दिन फाइल हुआ है, जिस दिन कंप्लेंट आई है कि नहीं हमें डिवोर्स चाहिए, उसी से ठीक 1 साल पहले से इस दिन तक क्या दोनों पार्टी साथ में रहे हैं? अगर द आंसर इज नो, फ्रॉम लास्ट 1 year बोथ द पार्टीज हैव नॉट लिव्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ उन लोगों ने रहा ही नहीं, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है। एंड इन दिस कंडीशन द पार्टीज विल बी ग्रांटेड द डिवोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट। जहाँ पे दोनों पार्टी एक दूसरे से म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हाँ, हमें डिवोर्स चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, एंड हम दो लोगों ने लास्ट 1 साल से एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं, एंड इन दैट कंडीशन द डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ग्राउंड कैन बी ग्रांटेड। तो 13B का क्लॉज 2 क्या बोलता है? Not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition, and not later 18 months after the said date. Okay. And जहाँ पे दोनों चीजें, पहला होता है क्या, जिस दिन म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन आ रहा है उसी से ठीक 1 साल पीछे जाके देखिए, 1 साल से उस दिन से 1 साल के बीच में उन दोनों ने साथ में नहीं रहा है, तभी म्यूचुअल डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? मान लीजिए दोनों पार्टी उसी से पहले साथ में रह रहे थे, उसी का 5 महीने से पहले भी उन दोनों ने साथ में रहा है, बट ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स उन लोगों को ये लगता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। तो कोर्ट ने पूछा उन दोनों को कि आप बताओ भाई, आप कितने दिन से एक दूसरे से अलग रह रहे हो?
तो दोनों बोलते हैं नहीं, हम भी बस अभी लास्ट 4 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं एंड हम दोनों को म्यूचुअली अब लगता है कि ऐसा ऐसा रीजन है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, ओके। तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा ना, उनको 6 महीने का टाइम पीरियड होगा, राइट। एंड रिमेम्बर इट, 6 महीने से पहले उनका डिवोर्स नहीं हो सकता। इवन इफ इट इज ए म्यूचुअल डिसीजन, इट इज ए म्यूचुअल ग्राउंड कि नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लास्ट 4 महीने से नहीं रहे हैं। बट अगर उसी का ड्यूरेशन 1 साल होता है तभी आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। अगर ड्यूरेशन 1 साल से कम है, इवन इफ दैट इज 11 मंथ, 11 महीना भी है ना, तभी भी कोर्ट उनको डिवोर्स अप्रूव नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगा कि और 6 महीना टाइम लो, एक दूसरे को टाइम दो। अगर 6 महीने के अंदर आप दोनों को लगता है कि नहीं, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तभी आके बताना, नहीं तो हम डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। तो डिवोर्स फाइल करने के बाद डिवोर्स का डिक्री आने का जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 महीना। तो मैक्सिमम कितना होता है, 18 महीना। मान लीजिए काउंसलिंग के सिलसिले में मैटर 18 महीना चला गया, बट 18 महीने के बाद कोर्ट को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब नहीं, अब इन दोनों पार्टी को डिवोर्स ग्रांट करवा देना चाहिए, एंड इन दैट कंडीशन ऑल्सो द पार्टीज हैज बीन ग्रांटेड द डिवोर्स। तो एक बात, अंडर सेक्शन 13 बी 2 चीजें बोला गया है, उसको याद रखिएगा। पहला चीज क्या है, जिस दिन से डिवोर्स फाइल हो रहा है उसी से पहले अगर 1 साल के बीच में पति पत्नी साथ में नहीं रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर अपॉन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स, तभी डिवोर्स आसानी से मिल सकता है। अगर जिस दिन डिवोर्स फाइल हो रहा है उससे पहले 1 साल के अंदर पति पत्नी साथ में रहे हैं, दे हैव बीन स्टेड टुगेदर, बट अभी उन दोनों को लगता है कि नहीं, हम दोनों को अभी अलग हो जाना चाहिए, देन कोर्ट विल गिव देम सर्टेन टाइम टू रीथिंक अपन दैट एंड कोर्ट विल ग्रांट द जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ द डिवोर्स। कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करेगा इंस्टेड ऑफ द डिवोर्स, एंड कोर्ट ये बोलेगा the duration of this period before granting the divorce, that is 6 month, 6 महीने का टाइम है आप एक दूसरे के पास, आप लीजिए। एंड 6 महीने के अंदर अगर आपको लगता है तो वापस आइए, नहीं तो हम डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। एंड द टाइम पीरियड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स इज 6 मंथ, इज मिनिमम एंड मैक्सिमम 18 मंथ। याद रहा, 6 मंथ इज मिनिमम, 18 मंथ इज मैक्सिमम, ओके। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13 बी। सेक्शन 14, it speaks about no petition for divorce to be presented within 1 year of the marriage. It exactly speaks कि फॉर एग्जाम्पल 22 जुलाई 2024 को मेरा शादी हुआ, तभी अगर मैं नेक्स्ट मंथ पे मतलब 22 अगस्त में शादी के बाद जाके ये बात बोलती हूँ कि मेरे को अभी डिवोर्स चाहिए, देन इज इट एक्सेप्टेबल? द आंसर इज नो, बिकॉज शादी का 1 साल के टाइम पीरियड तक आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट फाइल द डिवोर्स until and unless the period of 1 year has been completed. That is why it has been told कि शादी कर लिए एटलीस्ट 1 साल साथ में रहना जरूरी है। शादी के 1 साल के बाद ही एक दूसरे के अगेंस्ट डिवोर्स पिटिशन ला सकते हैं, ओके। एंड सेक्शन 15 स्पीक्स दैट आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स द डाइवोर्स पर्सन्स मे मैरी अगेन। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द डिवोर्स कैन द पर्सन्स मैरी अगेन, जब डिवोर्स का फाइल या डिवोर्स का पिटिशन चल रहा है ड्यूरिंग दैट 6 मंथ पीरियड, जब एक दूसरे के बीच में मतलब कोई भी चीज फाइनल नहीं हुआ है, या फिर द ड्यूरेशन ऑफ दैट 18 मंथ पीरियड, जबकि डिवोर्स का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, काउंसलिंग चल रहा है, इन दैट पीरियड कैन द पार्टीज बी ग्रांटेड द डिवोर्स? The answer is no. The parties cannot remarry until and unless the final divorce decree is passed. जब तक फाइनली डिवोर्स ना हो जाता तब तक दोनों पार्टी दूसरे किसी को मैरिज नहीं कर सकते। And until and unless the duration of the divorce proceeding is continuing, the another partner will be called as your spouse.
मतलब जब तक डिवोर्स फाइनल नहीं हो जाता, जिसी के अगेंस्ट आपका केस चल रहा है, अगर आप एक पति हो तो आपका पत्नी जो है जिसको आप डिवोर्स देना चाहते हो या वो आपको डिवोर्स देना चाहती है, वो तब तक आपका पत्नी बोला जाएगा जब तक आपका उनके अगेंस्ट कोर्ट से डिवोर्स का फाइनल डिक्री ना आ जाए। दैट इज वाई until and unless द फाइनल डिक्री इज पास्ड, तभी तक दूसरी शादी भी आप नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 14 एंड 15, जो कि इन डिटेल्स हमने नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज इट इज लिटिल वास्ट, उसको थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देके समझना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी तक अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। एनी डाउट इसी का क्या? चलो, आई एम एंडिंग द मीटिंग राइट नाउ, आई एम सेंडिंग यू ए गूगल मीट, तो वहाँ पे आ जाना, जो भी डाउट है विल बी क्लैरिफाइंग इट।